ابو جان کا نام شیخ نذیر ہے. میں پڑھتی ہوں 8ویں شہر کے کھڑگپور آباد کے رضا مسجد کے مدرسے میں. سب کچھ اللہ نے بنایا ہے. سب کچھ اللہ نے بنایا ہے. کو تہکایا ہے, چاند کو بھی چمکایا ہے. سورج کو تہکایا ہے, چاند کو بھی چمکایا ہے. سب کچھ اللہ نے بنایا ہے. کھانا کھانا, پانی پینا, بیماری سے شفا پانا. کھانا کھانا, پانی پینا, بیماری سے شفا پانا. سب اللہ نے بنایا ہے. سب بیٹی ہوں اسلام کی, نہ غلط سنتی ہوں نہ غلط کرتی ہوں. اچھی سچی باتیں سیکھتی ہوں, پیاری پیاری باتیں کرتی ہوں. میں رضا مسجد کے مدرسے میں پڑھتی ہوں. امی جان میرے پیار, اپنا اسلامی مقصد یہ ہے, مجھے اپنی اور دوسرے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ عز و جل میں بھی پردہ کروں گی, ماں میں بھی پردہ کروں گی. اسلام کی بیٹی ہوں, میں پردہ کرتی ہوں. اللہ اور رسول کے حکموں کی میں پرواہ کرتی ہوں. میری پیاری امی جان, میرے پیارے ابو جان, خدا کا ہے فرمان, کہتا ہے قرآن, بنو نہ انجان. اسلام کی بیٹی ہوں, میں پردہ کرتی ہوں. اللہ اور رسول کے حکموں کی میں پرواہ کرتی ہوں. میرے رب کی چاہت پردہ ہے, میرے نبی کی چاہت پردہ ہے. ایمان کی علامت پردہ ہے, تقویٰ کی علامت پردہ ہے. پیغام جہاں کو یہ دوں گی, پیغام جہاں کو یہ دوں گی. میں وعدہ کرتی ہوں, اسلام کی بیٹی ہوں, میں پردہ کرتی ہوں. اللہ اور رسول کے حکموں کی میں پرواہ کرتی ہوں. پردے میں رہنا میرے حیا کی قوت ہے. پردے میں رہنا میرے حسن کی زینت ہے. پردے میں رہنا میرے حیا کی قوت ہے. پردے میں رہنا میرے حسن کی زینت ہے. اسلام کی بیٹی ہوں, میں پردہ کرتی ہوں. اللہ اور رسول کے حکموں کی میں پرواہ کرتی ہوں. میرے دین کی حفاظت پردہ ہے, میرے قلب کی راحت پردہ ہے. فتنوں سے براعت پردہ ہے, قرآن کی ہدایت پردہ ہے. جنت کی خود کو حوروں کی, جنت کی خود کو حوروں کی میں ملکہ کرتی ہوں. اسلام کی بیٹی ہوں, میں پردہ کرتی ہوں. اللہ اور رسول کے حکموں کی میں پردہ کرتی ہوں. آغاز گناہوں کا
नजरों से होता है एहसास सजाओं का, कब्रों से होता है आगाज गुनाहों का, नजरों से होता है एहसास सजाओं का, कब्रों से होता है। इस्लाम की बेटी हूँ मैं, पर्दा करती हूँ, अल्लाह और रसूल के हुक्मों की मैं परवाह करती हूँ। मेरी प्यारी अम्मी जान, मेरे प्यारे अब्बू जान, खुदा का है फरमान, कहता है कुरान, बनो ना अनजान। इस्लाम की बेटी हूँ मैं, पर्दा करती हूँ, अल्लाह और रसूल के हुक्मों की मैं परवाह करती हूँ। जिस्मों की अमानत पर्दा है, नस्लों की शराफत पर्दा है, अफ़्फ़त की सलामत पर्दा है, औरत की नज़ाकत पर्दा है। किए गुनाहों से, गुनाहों से, गुनाहों से, अब तक किए गुनाहों से मैं तौबा करती हूँ। इस्लाम की बेटी हूँ मैं, पर्दा करती हूँ, अल्लाह और रसूल के हुक्मों की मैं परवाह करती हूँ। मेरी प्यारी अम्मी जान, मेरे प्यारे अब्बू जान, खुदा का है फरमान, कहता है कुरान, बनो ना अनजान। इस्लाम की बेटी हूँ मैं, पर्दा करती हूँ, अल्लाह और रसूल के हुक्मों की मैं परवाह करती हूँ। कुफ्फार की आदत है बेधर्म अबा रहना, शैतान की बगावत है बेशर्म हया रहना। कुफ्फार की आदत है बेधर्म अबा रहना, शैतान की बगावत है बेशर्म हया रहना। इस्लाम की बेटी हूँ मैं, पर्दा करती हूँ, अल्लाह और रसूल के हुक्मों की मैं परवाह करती हूँ। मोमिन की सादत पर्दा है, जन्नत की जमानत पर्दा है, रूहानी शाद पर्दा है। कुफ्फार के हर बेघासों की, कुफ्फार के हर बेघासों की मैं चिंता करती हूँ। इस्लाम की बेटी हूँ मैं, पर्दा करती हूँ, अल्लाह और रसूल के हुक्मों की मैं परवाह करती हूँ। मेरी प्यारी अम्मी हसबी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूर मोहम्मद सल्ले अला ला इलाहा इल्लल्लाह, हसबी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूर मोहम्मद सल्ले अला ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे सदके में आका सारे जहां को भी न मिला, तेरे सदके में आका सारे जहां को भी न मिला। दीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, हसबी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूर मोहम्मद सल्ले अला ला इलाहा इल्लल्लाह। सबसे पहले सलाम करो, फिर लोगों से कलाम करो। सबसे पहले सलाम करो, फिर लोगों से कलाम करो। आदत करती बन जाए
صلی علی لا الہ الا اللہ. کھیل میں وقت نہ ضائع کرو بلکہ قرآن شریف پڑھو. کھیل میں وقت نہ ضائع کرو بلکہ قرآن شریف پڑھو. غلام رسول کے مدنی پھول بچوں کو دکھلایا کرو. غلام رسول کے مدنی پھول بچوں کو دکھلایا کرو. مدنی چینل دیکھیں گے اچھی باتیں سیکھیں گے. مدنی چینل دیکھیں گے سچی باتیں سیکھیں گے. جذبہ ملے گا نیکی کا. لا الہ الا اللہ ربی جل اللہ معافی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی علی لا الہ الا اللہ. اپنا اسلامی غلبہ یہ ہے اسلام کا بیٹا ہوں اسلام کا. میں غلط کرتا ہوں نہ غلط سنتا ہوں. اچھی سچی باتیں سیکھتا ہوں. پیاری پیاری باتیں کرتا ہوں. میں رضا مسجد کے مدد سے کرتا ہوں. سب کو السلام علیکم. ماشاءاللہ بچوں کا تقریباً ہو چکا ہے. آپ لوگوں کا نمبر ہے اور اپنا شریف پڑھنے کے لیے تشریف لائیں گی یا جہاں مناسب سمجھے. نبیل کی امی اور یہ شریف پڑھیں گی. اس کے بعد بیان. نبیل کی امی جان سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ سنتا ہے سب کی دعا کر تو دیکھو تم اپنا نصیب آزما کر تو دیکھو. سبحان اللہ. سیاہی گناہوں کی دھل جائے دل سے تم آنکھوں سے آنسو بہا کر تو دیکھو. سبحان اللہ. وہ سنتا ہے سب کی دعا کر تو دیکھو تم اپنا نصیب آزما کر تو دیکھو. وہ ہے حی القیوم شہرات نزدیک مصیبت میں اس کو بلا کر تو دیکھو. سبحان اللہ. وہ ہے حی القیوم شہرات نزدیک مصیبت میں اس کو بلا کر تو دیکھو. وہ اللہ تم سے محبت کرے گا
नबी से वफा तुम निभा कर तो देखो सुभान अल्लाह। ज़मीं की तुम्हें बादशाही मिलेगी, कलम लाइला का उठा कर तो देखो सुभान अल्लाह। ज़मीं की तुम्हें बादशाही मिलेगी, कलम लाइला का उठा कर तो देखो, खुदा खुद खरीदार होगा तुम्हारा, शहादत के बाजार जाकर तो देखो सुभान अल्लाह। चहकने लगे रूह दिल शाद होगा, कली जिक्र रब की खिला कर तो देखो सुभान अल्लाह। चहकने लगे रूह दिल शाद होगा, मैं गलत सुनती हूँ, अजीब अच्छी बातें करती हूँ, प्यारी प्यारी बातें करती हूँ, मैं रज़ा मस्जिद के मदरसे में पढ़ती हूँ। हम पढ़ेंगे मेरी सच्ची किताब मेरी अच्छी सहेली, मेरी सच्ची सहेली मेरी अच्छी किताब। आओ मिलकर दीन का काम करे, अखलाक व तालीम आम करे, फरमाने नबी फरमाने खुदा हम सब बाबरदा बाहया। या नबी 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 या नबी। लब पे जारी रहे लब पे जारी रहे ये सदा हर घड़ी, या नबी 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 या नबी। आप आए तो लब पे ये जारी
जन्नती 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 या नबी 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 औलिया का ये अंजाम है दुश्मने औलिया का ये अंजाम है दो ज़की 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 या नबी 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 नात सरकार क्या है असद के लिए नात सरकार क्या है असद के लिए बंदगी 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 या नबी 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 मुझे अपनी और दूसरे लोगों की नामी कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। आप सभी को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां रहमत खुदाए पाक खिलाती है बेटियां रहमत खुदाए पाक खिलाती है बेटियां किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां रहमत खुदाए पाक खिलाती है बेटियां बेटे हजार जुल्म सितम करते हैं मगर बेटे हजार जुल्म सितम करते हैं मगर माँ बाप को कभी न सताती है बेटियां माँ बाप को कभी न सताती है बेटियां बिरमत से जिनके घर में भी आती है बेटियां रहमत खुदाए पाक खिलाती है बेटियां बेटों से कम न समझो इन्हें ऐ दोस्तों बेटों से कम न समझो इन्हें ऐ दोस्तों सोए हुए नसीब को जगाती है बेटियां सोए हुए नसीब को जगाती है बेटियां किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां रहमत खुदाए पाक खिलाती है बेटियां एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते बाबुल के घर को छोड़ के जाती है बेटियां बाबुल के घर को छोड़ के जाती है बेटियां किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां रहमत खुदाए पाक खिलाती है बेटियां सबको अस्सलाम। स्कूल के तालीम में आप कभी नहीं रुकावट डालते हैं, लेकिन मदरसे में
तो ये आरवी शहर के खड़गपुरा वार्ड की वो बड़ी बड़ी बच्चियां हैं। मैंने बताया कि इसमें से कोई शादीशुदा हो चुकी हैं, किन्हीं की शादी लगी हुई है, लेकिन ये अभी भी पढ़ रही है मदरसा। तो देखिए ये क्या क्या सीख रही हो, कितनी बेहतरीन अंदाज में। ये सब स्पीकर हैं, ये बयान आप सबके सामने बहुत ही लाजवाब करती हैं, लेकिन वक्त नहीं है। ये सिर्फ एक नात शरीफ पढ़ेंगी और मैं आवाज दे रहा हूँ, फरीहा शिरीन और टीम ये पूरी आएंगी और नात शरीफ पढ़ेंगे आप सबके सामने। और आप सबको नबी के लोगों को जर्रा बराबर डर नहीं है। आप सब ईमानदारी से बताएं कि इनके अंदर क्या कमी लग रही है, क्या इनका चेहरा कुछ बिगड़ गया क्या ये पहनने से? खुदा के वास्ते अजाब से डरो। और आप महंगे महंगे इतने ऐसे ऐसे कपड़े ला रहे, बदन दिख रहा है, बाल खुले हुए हैं, आड़ा टेढ़ा पता नहीं कैसे। तो कल क़यामत के दिन इसके बारे में आपके शौहर से, आपके भाई से, आपके बाप से सबसे पूछ होगी। तो अपने बच्चियों को इस्लामी लिबास पहनाओ। फैशन के नाम पर और दुनिया के नाम पर पैसा देकर गुनाह खरीदते हैं, तो वो कपड़ा जो बेपर्दा हो वो दुरुस्त नहीं है। अब देखिए इसकी क्या बिगड़ रहा है, कितनी प्यारी लग रही है। आर्मी में जब जुलूस निकलता है, यहाँ वाले देखे होंगे, रशीद भाई को मालूम है, तो वहाँ वाले कहते हैं कि ये तो लगता ही नहीं कि आर्मी के बच्चे हैं, ये तो लगता है कहीं से ट्रेनिंग करके आए हुए हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि लिबास पर खास ध्यान दें और अपने बच्चियों को बाहया वाला लिबास पहनाएं। जज़ाकल्लाहु खैरा। तशरीफ लाइए। आज ना मेरी माँ और बहनों, आज आपको हो क्या गया है? याद करो उनकी कुर्बानियों को जो दीन के खातिर दरख्त की पत्तियां चबाया करते थे, चमड़े चबाया करते थे। सोचो अल्लाह के घर, अल्लाह के हबीब के घरों का ये हाल था मेरी बहनों। अगर आज हमारे देहातों तक अजान पहुंची तो हमारे बाप दादाओं की कुर्बानियों की वजह से नहीं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियों की वजह से। आज हम जो कहते हैं ना कि हम मुसलमान हैं, तो हमारे बाप दादाओं की वजह से नहीं, मेरे हुजूर की कुर्बानियों की वजह से मेरी बहनों। अल्लाह अकबर मेरी बहनों। अब आप मुझे बताइए कि अल्लाह के हबीब ने इतनी मेहनतें की, इतनी मुशक्कतें की, और बदले में हमने उनको क्या दिया? अल्लाह अकबर मेरी बहनों। यानी हम जो हुजूर की मोहब्बत का दावा करते हैं, वो सिर्फ दावा ही करते हैं, और वो भी ज़बानी, उसका दिल से कोई ताल्लुक नहीं। अगर ताल्लुक होता ना मेरी बहनों, जब मस्जिद में अजान होती और हम मस्जिद से काफी दूर होते, तो हमारा दामन दिल हम खींचना कि अगर मेरे नबी के घर वालों ने 3 साल तक दरख्त की पत्तियां चबाई, चमड़े चबाए, अगर मैं ये नमाज कज़ा कर दूं या छोड़ दूं, तो मेरे नबी के नाफरमानी के लोगों में, उनकी लिस्ट में मेरा नाम लिखा जाएगा मेरी बहनों। अल्लाहू अकबर। अगर मेरी प्यारी बहनों, हुजूर पूरी रात हुई अनफिया और साइमा बिनते रशीद भाई ये तशरीफ लाएंगी और अपना बयान 8 से 11 मिनट के बीच में कोशिश करेंगे पूरा। मेरी माओ और बहनों, मैं अब तमाम लोगों का आज के इस इस्लामी इज्तिमा में इस्लामी तरीके से इस्तकबाल करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो मैंने आप तमाम लोगों को अभी सलाम किया है, उस सलाम के मानी है अल्लाह आप तमाम सब लोगों पर सलामती, रहमतें और बरकतें अता करे। क्योंकि मैंने अभी ये मानी तो आप सभी को पता ही होगा, फिर भी मैंने आपको बताई हूँ, क्योंकि आज के इस जनरेशन में ज्यादा से ज्यादा पता है आप लोगों को क्या चल रहा है, जैसे कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। अब आप लोगों को पता है कि इसकी मीनिंग क्या है? जैसे कि गुड मॉर्निंग बोलते हैं, जैसे कोई भी फ्रेंड सर्कल में मिलते हैं कि गुड मॉर्निंग, या व्हाट्सएप पर तो आजकल बोल ही रहे हैं, तो गुड मॉर्निंग के मीनिंग है, मतलब है कि आपकी सुबह खैर हो। क्यों भाई, हमारी के दोपहर और शाम और रात खैर नहीं हो सकती, बस सुबह ही। वैसे ही बोलते हैं कि आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट वगैरह वगैरह। इसलिए हम इस्लामी बहनें हैं, हमें जब भी आपस में मिलना है तो सलाम करना है।
इंशाअल्लाह मेरी माओ बहनों, मेरा आज का उन्वान एक ऐसा उन्वान है जो हर मोमिन मर्द और औरत पर फर्ज है, वो है नमाज। क्या है? नमाज। मेरी बहनों, कभी आपने गौर किया कि अल्लाह ने हमें आँख दी, हमें कान दिए, हमें वही अल्लाह जिसने हमें दिल दिया। क्यों दिए? क्योंकि मेरी बहनों जरा गौर से सुनना, जब अल्लाह ने हमें अपनी माँ के पेट से निकाला तो हम क्या थे? हम कुछ भी नहीं थे मेरी बहनों, कुछ भी नहीं। अल्लाह ने हमें सलाहियत दी कि हम जो कान दिए तो हम उससे चीजों को सुन सके। अल्लाह ने हमें आँख दी कि हम उसे देख सके। वही अल्लाह जिसने हमारे सीनों में 24 घंटे धड़कने वाला दिल दिया। और इसके बाद अल्लाह ने हमें, आज जो हम इंसान हैं वो भी मेरे अल्लाह की एक नियामत है, वो भी मेरे अल्लाह की एक नियामत। इतनी प्यारी नियामतें मेरे अल्लाह ने हमें दी। क्यों दी? ताकि हम अल्लाह का शुक्रिया अदा कर सकें। अगर कोई इंसान हमें, दुनिया में कोई भी इंसान हमें अगर कोई चीज देता है तो हम उसका शुक्रिया कैसे अदा करते हैं? थैंक यू बोल के, थैंक्स या जज़ाकल्लाह खैर। अब इसके बाद दुनिया, अल्लाह ने तो हमें ऐसी नियामतें अता की कि दुनिया में कोई भी जात हमें वो नियामतें अता नहीं कर सकती। इसलिए मेरी बहनों, हमें अल्लाह का शुक्रिया अदा करना है। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि अल्लाह ने हमें इतनी सारी नियामतें दी, लेकिन अब हमें अल्लाह का शुक्रिया अदा कैसे करना है ये आप लोग जानते हैं। तो चलो हम इसका शुक्रिया अदा करने का हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का शुक्रिया अदा कैसे करते थे। एक मर्तबा हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इतनी नमाजें पढ़ते हैं, इतनी नमाजें पढ़ते हैं, आपके तो अगले पिछले सारे तमाम गुनाह माफ कर दिए गए हैं, फिर भी आप इतनी नमाजें क्यों पढ़ते हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ए आयशा, मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा ना करूं? क्या फरमाते हैं यहाँ? क्या मिला हमें एक पॉइंट कि ए आयशा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा ना करूं? हमें मेरी प्यारी माँ और बहनों, हमें यहाँ पता चलता है कि अल्लाह का शुक्रिया हमें कैसे अदा करना है? नमाज पढ़ के। कैसे अदा करना है? नमाज पढ़ के। मेरी माँ और बहनों, जरा सोचो, जब हम हमारी माँ के पेट से निकले तो हम कुछ भी नहीं थे। अल्लाह ने हमें बगैर मांगे सब कुछ अता किया, आँख दी, कान दिए, पैर, हाथ, सब कुछ अता किए। जब हम हमारी माँ के पेट में थे तो हमने अल्लाह से तो नहीं कहा कि अल्लाह हमें आँख दे दीजिए, अल्लाह हमें कान दे दीजिए। बगैर मांगे मेरी बहनों, अल्लाह ने हमें इतनी सारी नियामतें अता की है, तो हमारा फर्ज है कि हम अल्लाह का शुक्रिया अदा कर सके। मेरी प्यारी मेरी बहनों, नमाज किसी भी सूरत में माफ नहीं की है अल्लाह ने कहा किसी भी हालत में हो नमाज नहीं माफ की है। अगर घर में बच्चा पैदा हो तो अल्लाह ने बाप को नमाज माफ की है। अगर घर में मैयत हो जाए या कोई मर गए तो अल्लाह ने माफ की है नमाज। मेरी बहनों, जरा गौर से सुनना, फिर क्या सोचकर हम नमाजों को छोड़ देते हैं। मेरी बहनों, मेरी माँ और बहनों, क्या हो गया है आज मेरी उम्मत की माओ को? क्या हो गया है? जब अल्लाह, अगर मुसलमान मोहल्ले फज्र के वक्त, मेरी बहनों ज्यादा गौर करिए आप, फज्र के वक्त अगर हमारे मुसलमान मोहल्ले को देखा जाए तो वो वीरान नजर आता है, बेनमाजियों की तरह। क्या हो गया है मेरी उम्मत की माओ को? हमारे पूरे घर के दरवाजे बंद होते हैं फज्र की नमाज के तौर पर। मेरी माँ बहनों, आप मस्जिदों को गौर कीजिए, जुमा के दिन जितनी मस्जिदें भर जाती है, फज्र की नमाज में 2 सफ भी पूरी नहीं भरती। अल्लाहु अकबर मेरी बहनों, अल्लाहु अकबर। एक बार आप दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। मोमिनो, कोई मुसीबत हो तो नमाज पढ़ो, किसी भी तरह की किल्लत हो तो नमाज पढ़ो, दोनों आलम में रखेगा खुदा तकदीर पसंद बुलंद। अगर तुम्हें उसकी हाजत हो तो नमाज पढ़ो। सुभान अल्लाह। अल्लाह से कनेक्ट, अल्लाह से जुड़ने के लिए नमाज है मेरी बहनों, अल्लाह से जुड़ने के लिए नमाज है। हम उम्मती है, हम कितने खुश नसीब है कि हम उम्मती है। हम उम्मतियों को नमाज मिली, कुरान मिला, हमें मस्जिद मिली मेरी बहनों, मस्जिद।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کسی بھی صورت میں تمہیں نماز معاف نہیں کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے صحاباؤں کو تلوار سے آزمایا اور ہمیں گناہوں سے آزمایا۔ ہمیں اللہ نے صحاباؤں کو مال و دولت کی فریبانی کو کم کر کے ان کو آزمایا اور ہمیں مال و دولت دے کر آزمایا۔ اللہ نے مال و دولت دے کر آزمایا، مگر قربان جاؤ ان صحاباؤں پر جو اتنی پریشانی اتنی تکلیف میں رہ کر بھی دین سے دور نہ ہٹ سکے، اور ہم چند کپڑوں کی وجہ سے، اچھے کھانے کی وجہ سے ہم نماز سے کوسوں دور ہو گئے۔ اللہ اکبر میری بہنوں، ذرا سوچو کیا ہو گیا ہے آج میری امت کی ماؤں کو۔ اتنا کڑوا گھوٹ پی کر میرے صحابہ دین سے دور نہ ہو سکے اور ہم دین سے کوسوں دور ہو گئے صرف مطلبی تہذیب کی وجہ سے۔ صحابہ اکرام کو لوگوں نے مصیبت دے دے کر ان کو دین سے دور نہ کر سکا اور ہمیں چند خوشیاں دے کر دین سے دور کر دیا۔ اللہ اکبر میری بہنوں، اللہ اکبر۔ باپ کی محنتوں پر آنسو بہانے والوں، کبھی میری نبی کی محنت پر آنسو بہائے۔ میری ماں اور بہنوں، دین پھیلانے کی خاطر میرے آقا پر اتنے ظلم کیے کفار کے لوگوں نے، اتنے ظلم کیے مکے کے کفار کے لوگوں نے کہ میں بیان نہیں کر پاؤں گی۔ میرے آقا کے دیوانوں، ذرا سوچو، ہے کوئی دنیا میں تاریخ دین جس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ جب میں حضور نے اپائے کیا تھا اس کے لیے آیا تو اپنے بیوی سے مال طلب کیا، بیوی نے وہ مال نکال کر جوہر کے حوالے کر دیا۔ اب مال کے ملنے پر جوہر بہت حیران ہوا کہ مال کو میں نے دریا میں پھینک دیا، یہاں واپس دے دیا گیا۔ ظالم جوہر نے سوچا کہ اس میں ضرور عورت کی کوئی چالاکی ہے، مطلب اس کو یہ سوچنا چاہیے، اس کو یہ مطلب عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ ایسا دیکھے اللہ کی مدد نہیں، لیکن اس نے کیا سوچا کہ عورت کی چالاکی ہے، اس نے وہ نہیں لیا عبرت کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو پڑھتی اللہ کی طرف سے اس کی مدد ہو، لیکن اس نے یہ نہیں سوچا، الگ ہی الگ وہ ہے۔ تو اس نے کیا کیا، کنویں میں آگ لگایا تاکہ وہ اس میں اپنے کیا کیا عورت کو ڈال دیا کہ وہ جل جائے اس میں۔ اب اس نے خاتون نے کیا کیا، اس نے نمازی خاتون نے اللہ حج و جل کی بارگاہ میں التجا کی کہ اے اللہ حج و جل، میں ہمیشہ نماز پڑھتی رہی اور آج اس نماز کے بچے میری لاج رکھ لے۔ اللہ حج و جل نے اس کی دعا قبول فرما لی اور اس میں خدا بندی سے چلنے کی تمام آگ فوراً ٹھنڈی ہو گئی اور سبحان اللہ صحیح سلامت سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھے ہی کہ مطلب ابھی اتفاقی تو ہے کہ مطلب اس نے اتنے بڑے پانی میں پھینکا، سمندر میں پھینکا، مچھلی نکل گئی اور مچھلی مچھوارے میں بھی چلی گئی، پھر وہ پھر اتفاق کیا تھا اس کے شوہر نے بھی، یا اللہ کی قدرتی تو ہے اس نے مدد کیا نہ پھر ایک بندے کا نہ جو مالے کی مدد بھی کر سکتا تھا۔ تو بہنوں ہم لوگ اچھے سے عبادت کر کے اللہ کو خوش کریں گے انشاءاللہ، اور نماز کی پابندی بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جنت میں لے کے جائے گی بیویوں نماز، خالق سے بخشوائے گی بیویوں نماز، دربار مصطفیٰ میں لے کے جائے گی، دیدار حق دکھائے گی بیویوں نماز۔ سبحان اللہ۔ سے تمہیں اور جہنم سے سمندر سے بچائے گی بیویوں نماز۔ سبحان اللہ۔ محشر کی چلچلاتی دھوپ میں تمہیں سائے میں جا بسائے گی بیویوں نماز۔ سبحان اللہ۔ پردہ کرو سدا تم پڑھتی رہو نماز، عزت تمہیں دلوائے گی بیویوں نماز۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نماز قرآن پڑھنے کی پابندی عطا فرمائے، آمین۔ اور ہم سب کو تمام پریشانیوں سے اور مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے، آمین۔ اور جو کچھ میں نے آپ سب کو بتایا ہے اس میں غلطی ہو کے معاف فرمائے، اور آج میں نے
ने जो कुछ बताया अल्लाह ताला हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक फरमाए, आमीन। और मेरी माँ बहनों आप लोग यहाँ इतनी सारी आबादी हुई है, अल्लाह ताला हम सबको हम सबका आना कबूल फरमाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व न मांगो तो नवाज देता है, तारीफ उस खुदा की जो न मांगो तो नवाज देता है, मांगो तो बेहिसाब देता है। आप आए तो अब उजाला बहुत है, आप आए तो अब उजाला बहुत है, कैसी जलती रहे ये शमा बुझा दी जाए। मैं हमारे हजरत की गुलगोशी के लिए हमारे भाईजान अब्दुल गफ्फार भाई को बुलाती हूँ कि वो आए और हजरत की गुलगोशी करें। सुभान अल्लाह। मैं अपने बाजी से गुजारिश करती हूँ कि वो आए स्टेज पर। मैं बाजी की गुलगोशी के लिए स्टेज के साथ उनका इस्तकबाल करती हूँ कि तारीफ के मोहताज नहीं होते कुछ लोग, तारीफ के मोहताज नहीं होते कुछ लोग, क्योंकि फूलों को कभी अतर लगाया नहीं जाता। मैं इनकी गुलगोशी के लिए हमारी बहन फरिया शरीफ को आवाज देती हूँ कि वो आए और बाजी की गुलगोशी करें। सुभान अल्लाह। सुनी सुनी डगर उजड़ा उजड़ा चमन, दिल तेरे ये न महकेगा मुश्के खूतन। सुनी सुनी डगर उजड़ा उजड़ा चमन, दिल तेरे ये न महकेगा मुश्के खूतन। टूट कर जैसे गिर जाएगा ये गगन, मेरी माँ तू है जन्नत में मासूम मगन। कैसे तुझको कहूँ फिर से आ जा यहाँ, कैसे तुझको कहूँ फिर से आ जा यहाँ। मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ प्यारी माँ, सब्र करती तो हूँ सब्र आता नहीं, सामने तेरी दूर कोई लाता नहीं। सब्र करती तो हूँ सब्र आता नहीं, सामने तेरी दूर कोई लाता नहीं। तेरा
अब कोई लाता नहीं, दर्द दिल है मेरा जाता नहीं, किसको अपनी सुनाएंगे हम दास्तां, किसको अपनी सुनाएंगे हम दास्तां। मेरी माँ, हाँ मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरे वालिद का ताज़ेर साया रहे, उनकी चश्मो इनायत का दरिया बहे। मेरे वालिद का ताज़ेर साया रहे, उनकी चश्मो इनायत का दरिया बहे। उनकी मेहनत मुशक्क़त से हमें परे, दिल से खिदमत करे उनकी अब बिन कहे, उनकी खिदमत का वादा लिया तूने, हाँ तू उनकी खिदमत का वादा लिया तूने, हाँ मेरी माँ, हाँ मेरी माँ, मेरी माँ, ओ प्यारी माँ, मेरी माँ तेरी ममता पे कुर्बान मैं, भूल जाऊँ न मौल का फरमान मैं। मेरी माँ तेरी ममता पे कुर्बान मैं, भूल जाऊँ न मौला का फरमान मैं। याद कर कर के हो जाऊँ हैरान मैं, तुझको पढ़ पढ़ के बख्शूंगी कुरान में। तेरी बेटी है और तू उसकी माँ, मेरी माँ, आओ मेरी माँ। मेरी माँ दुनिया में नहीं है, जो कुछ नहीं है, मैं दोनों का बहुत हाथ है। तो मेरी माँ, मेरे शौहर यहाँ बैठे, अल्लाह ताला उनको सही सलामत रखे। और मेरी माँ के लिए दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में कौन में जगह अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। आप अपनी बेटियों को दीन की तालीम दोगे ना तो वो आपसे डरेंगी। एक बात बेटियां आजकल बोलती मालूम है क्या? तुम क्या माँ पुराने जमाने की बात कर रही हो, अब दौर बदल गया। नहीं, माँ बेटी को जब दीन की तालीम दोगे ना तो वो बेटी ऐसा नहीं बोलेगी। वो जानेगी कि हमारे पास हाथ था, पकड़ नहीं पाते थे, पाँव था, चल नहीं पाते थे। माँ ने मुझे खून पिलाया, शिकम में रखा, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, और उसी माँ से आज बेटी जवान लड़ा रही है। क्यों? ये आपकी गलती है कि आप उसे दीन नहीं सिखाते। अगर दीन सिखाओगी तो यकीनन आज भी बेटियां अपने दीन पर अमल करना चाहती हैं। हमारे अरबी के हमारे मोहल्ले के चंद बच्चे हैं, ये इन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है और माशाल्लाह औरतों के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। एक ग्रुप बनाए हुए हैं व्हाट्सएप पर भी, यूट्यूब पर भी, और हर हफ्ते में इज्तिमा करते हैं। बच्चों की तरफ से भी हमें बताया गया कि आप सबसे गुजारिश है कि अगर कोई अपने घर पर इज्तिमा करना चाहे तो इंशाल्लाह पूरा इंतजाम हम लोगों की तरफ से रहेगा। सिर्फ आपको दो काम करना होगा, एक अपने यहाँ इज्तिमा करना होगा और दूसरा लोगों को सिर्फ दावत दे के बुलाना होगा। बाकी कुछ भी नहीं करना होगा, सब हमारे बच्चों की तरफ से होगा। तो अगर किसी को करना रहे, ऐसा कुछ नहीं कि बड़ा इंतजाम करना है, मुख्तसर करना चाहे अपने घर पर तो भी हो जाएगा। 2-3 बच्चों को लेकर हम लोग भिजवा देंगे। मौका रहा तो हम आगे, नहीं तो इनको भेज देंगे। तो इस तरीके से जो है इज्तिमा होता रहेगा। तो आप लोग जो है इज्तिमा में आया करें, किया करें। और ये जो मैंने आखिरी बात बताया, अपने बेटियों को दीन सिखाओ। अगर दीन नहीं सिखाओगे तो ये जान लो कि आज की जिंदगी बहुत बेकार। मेरी अच्छी किताब